See, okay, before moving to string, everyone remember the concept of arrays. Actually, chalo, before strings even, Sridhar has asked me to teach first pass by value, pass by value, and pass by reference. Pass by reference. Chalo, these two I will teach, and I will also teach you pass by pointer. Okay, chalo, let's start from this one, pass by value. Okay, everyone, let's start with pass by value, this one. I hope everyone has seen like how we used to make functions like this now. Int, everyone see. Swap function, everyone know what a swap do. What is swapping of two numbers means? Everyone know that or not? Like see, agar there are two integers like a is equal to 10, b is equal to 15, yes, interchange the values, correct? And I just want कि a में value आ जाए 15 and b में आ जाए 10. That means if this is the input, so I want this actually कि a में आ जाए 15, b में आ जाए 10. अब now everyone, it is not easy as you think. Like one thing is there are different methods for doing that. देखो, one is using extra variable. Using extra variable. Okay, extra variable से कैसे easy है? You can understand it like like ये जो a है 10, देखो बोल देखा है, समझ लो ये दो बोल्स हैं. यस यस आदित्य, वो बता दूंगा अभी, ठीक है. यूजिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल, अभी देखना, इसमें समझ लो लाइक दूध है, ओके, इसमें मिल्क है, इन दिस देयर इज मिल्क, एंड इन दिस देयर इज लाइक हनी. एवरीवन, यू वांट ना this is the a bowl, this is b bowl, okay, in this milk is there, in this honey is there. Now you want honey to become in a bowl and milk to go in b bowl. Okay, so everyone see what is the normal way. Can you do this? क्या honey और milk को पहले mix कर दो? Can you do this right now when I am talking about extra variable? अरे एक बार honey और milk एक बार mix हो गए, do you think now you can extract them out? हाँ रुचि, तो भी बता दूंगा. ओके, तो थर्ड वेरिएबल के साथ समझना, you will take one extra bowl. Okay, like this is a temporary bowl. What you will do, it is empty, it is empty. So what you can do is, देखो, whatever is in a ना, you will put it in temp. That means I am writing temp में डाल दो whatever the value of a is, correct? Now can I say that this blue thing, the milk, is now here after the first step? This is empty, correct? This one has become empty. Oh, okay, now what I can do is, everyone, what I wanted a में 15 आ जाए, that means b की value, so I can do is now transfer the material of b to where? A, because a is empty now, a is empty. So what you will do, you will fill here honey, correct or not? Now honey is here, and right now milk is here, and you wanted this milk to here. Was late, can you please remind me in short? हर्षा, लेट मत आया करो यार, ट्राई किया करो, मैंने बोला ना. अब देखो, अब से ध्यान रखा करो सब लोग, प्लीज कोशिश करो 30 तक सब ज्वाइन हो जाओ. ओके, मैं वेट करने की आदत हो चुकी है कि थोड़ी देर वेट करने का टाइम दे देता हूँ, 5 मिनट्स और लाइक दिस, बट इट इज नॉट अ गुड हैबिट ना. 30 पे ज्वाइन कर लिया करो सब लोग, ओके? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट डिले कर सकते हैं. ओके, सो अभी मैं ये बता रहा था, हर्षा पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट बता रहा था. इन दैट बिफोर मूविंग आई वाज जस्ट स्टार्ट टेलिंग यू ऑल अबाउट स्वैपिंग. ओके, आई नो, मतलब यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस बिकॉज पुराने बैच में थे. तो देखो, एक्स्ट्रा वेरिएबल का क्या काम था. अब हमने ये वाला जो हनी था वो इसमें डाल दिया, ए में. नाउ दिस बी इज एम्प्टी. अब नाउ व्हाट यू कैन डू इज टेक दिस मिल्क and place. Okay, before here also I was writing the code now. What I was doing, a में b को डाल दिया था, correct?
ए में बी को डाल दिया था यहां से कंटेंट उठा के, नाउ दिस हैज बिकम एम्प्टी, नाउ मिल्क को इसमें डाल दो, दैट इज बी इज इक्वल टू टेम्प, whatever was in temp now you can put it here, now you can understand it, milk is here, now honey is here, have we swapped the value, yes or no, simple, that was the concept. What is the concept? Like everyone see again, like a was 10 ना, temp initially कुछ नहीं है temp में, temp में डाल दो a की वैल्यू, now temp is 10, correct, a was 10, b was 15, देखो temp में a को डाल दिया इस स्टेप के बाद, okay, now when I said a equal to b, now a में डाल दो b को, b की वैल्यू was 15, a has become 15, correct everyone, now what I said, b में डाल दो temp, यहां पे डाल दो 10, have we swapped the values, yes or no, a में आ गया 15, b में आ गया 10, that's it, एक टेम्पररी में a डालो, a में b डालो, देखो ऐसे ऐसे, temp इक्वल टू a, a यहां आ गया, b कर दो, b यहां आ गया, temp कर दो, गेटिंग इट एवरीवन, ऐसे ऐसे, तो ठीक है, ये तो टेम्पररी वेरिएबल यूज करके था, बट इफ आई एम सेइंग यू कांट यूज एन एक्स्ट्रा वेरिएबल, देन व्हाट आर द वेज, देखो this was using a temporary variable, using a temporary variable but without space, without using space, okay, how can you do it, simple, I'm saying there are 2 to 3 methods, a lot of methods are there, okay, see, one method is, what you can do is, everyone see, I know like a is equal to 10, b is equal to 15, I want to make a equal to 15 and b equal to 10, I am saying everyone see, a में डाल दो, everyone see, a में डाल दो a plus b, तो a was previously 10, a plus b डाल दो, that means now a has become what, a was 10, b was 15, now a has become, can I say 25, yes or no, क्योंकि a में डाल दिया a plus b, करेक्ट, दोनों का समेशन डाल दो, नाउ एवरीवन सी, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो a हमारा है अभी करंटली a प्लस बी और हमारा b b है, करेक्ट, देखो अब देखो सोचो एक बार, अगर मैं a में कर दूं a माइनस बी, एवरीवन ट्राई, सॉरी, अगर मैं कर दूं b में a माइनस बी, व्हाट विल हैपन, देखो क्या होगा, a was now 25, करेक्ट, 25 minus b, b is right now 15, can I say b में आ गई है वैल्यू 10, yes or no, b में आ गई 10, नाउ अब सिंपल देखो बचा कितना, a की वैल्यू नहीं हुई शिफ्ट, देखो b में तो 15, वो b में तो 10 आ गया बट a में नहीं आया, what you can do is again लिख दो a is equal to a minus b, now what will happen, see a was 25, b is right now 10, 25 minus 10, can I say it will become 15, have we swapped the values, yes or no, that's it, okay everyone, yes, be responsive, where is the new student, हर्ष कहाँ है, अच्छा हर्ष लगता है चला गया, अभी उसे पुराने वीडियोस कवर करने पड़ेंगे, that's why, okay, तो क्या बोल रहा था, everyone got this ना, सिंपल यही है, a में पहले दोनों का समेशन डाल दो और यू कैन अंडरस्टैंड, लाइक सिंपल क्या ही बताऊं, ओके यही है सिंपल, a में डाल दो दोनों चीजें, फिर b में डाल दो, अभी जो दोनों चीजों का सम था a प्लस बी है ना, a एक्चुअली माइनस b कर दोगे तो a बचेगा ना, करेक्ट एवरीवन, करेक्ट, दो बचे, a बचेगा तो b हो जाएगा a के बराबर, देन अब b a के बराबर हो चुका ना, a तो टोटल a प्लस b था, अब जो b है वो एक्चुअल में a के बराबर है, जब ये करोगे ये कट जाएगा, b बचेगा, यस नो, दैट्स व्हाई a में आ जाएगी b की वैल्यू, b में आ जाएगी a की वैल्यू, दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है, नाउ एवरीवन टेल मी, क्या कोई और मेथड से कर सकते हो इसे, ये तो ठीक है, अरे आई एम सेइंग ना, जैसे प्लस माइनस के साथ कर सकते हो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के साथ यू कैन आल्सो डू इट, लाइक सी a इक्वल टू कर दो a इंटू बी, गेटिंग इट, लाइक देखो यहाँ पे a हो जाएगा 10 इंटू 15 दैट इज 150,
b is till now what? b is till now 15 only. then I am saying देखो b कर दो what? b में से हमें a की वैल्यू निकालनी थी, 10 लाना था, a डिवाइड बाय b कर दो, तो what will become 150 divided by 15, can I say 10? and then after this again do a is equal to a by b. everyone see a was 150, 150 by 10, b अब 10 है, can I say it will become 15? are these values swapped? this is using plus minus operator. plus minus operator, this is using multiplication division operator. everyone got this? कैसे ये दोनों मेथड किए? yes or no? ओके चलो एक और, अब एक स्पेशल वाली चीज है, ये वाले में बताओ किसको किसको डाउट है. हाउ वी वर डूइंग, एक में टोटल ले लो, टोटल में से b की वैल्यू माइनस करोगे, a बचेगा तो b में आ गया. देन अब इसमें जो भी आ गया टोटल हमारे पास था, उसमें से ये वैल्यू माइनस कर दो, यू विल गेट द रिमेनिंग एंड दैट विल बी इन a. दैट्स इट, दैट वाज द कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब देखो ये मेथड तो थोड़े ऑब्वियस थे, बट एक मेथड देखो, एवरीवन नो अबाउट XOR. XOR everyone know ना, XOR के प्रॉपर्टीज everyone know, it works on bit. कैसे बिट पे वर्क करते हैं? लाइक everyone tell me the XOR of these two number. इसका XOR बताओ everyone. करेक्ट, देखो किसी का और का रॉन्ग हो. करेक्ट एवरीवन. XOR में क्या होता है, अगर सेम होंगे तो 0 आएगा, इफ दे आर डिफरेंट 1 आएगा. सेम 0, डिफरेंट 1, डिफरेंट 1, सेम 0. करेक्ट एवरीवन, जस्ट टेल मी, सेम आता है तो 0 हो जाता है. ओके अगर मैं बोलूं किसी नंबर का उसी के साथ XOR करेंगे तो व्हाट विल कम? लाइक कोई नंबर है लाइक दिस एंड इसका XOR आई एम डूइंग विद इटसेल्फ, व्हाट विल बी द आंसर? always 0, can I say 1 1 match 0 0 0 0 0 0. correct, everyone know this property or not कि a XOR a is always 0, मतलब टू सेम वैल्यूज का XOR लोगे it is always 0. and everyone know this also or not, like everyone see कि it is work like this also, like if a XOR b equal to c है ना, if a XOR b equal to c है, then a XOR c equal to b होगा. is my voice not properly audible? all okay ना? हर्षा मतलब सब तो सही लग रहा है मुझे. सिमरन is also saying, लोकेश is also saying. हर्षा चेक करो, आई थिंक मतलब इधर से तो सब सही है, मैंने तो नॉर्मल सेटअप जो करता हूँ वही है. ऑडिबल है, कम लग रहा है थोड़ा, आवाज कम आ रही है मेरी? पता नहीं. नो सर, ऑल ओके सर. ओके फाइन, ठीक है. सो सही है हर्षा, वो पता नहीं. अब देखो इधर a XOR b इक्वल टू c है. ओके देन आई एम सेइंग a XOR c इक्वल टू b भी होगा. व्हाट आई मीन बाय दिस इज, हाँ देखो व्हाट आई मीन इज, तुम ना b को इस साइड भी ले जा सकते हो, लाइक a इज इक्वल टू c XOR b भी होगा. और यू कैन से लाइक वो कॉम्पिटिटिव भी होता है, वो कॉम्पिटिटिव व्हाट वी कॉल दैट, लाइक a XOR b है ना, b XOR a will also be equal to c. समझ आया? दैट मींस a XOR b is equal to b XOR a. दिस इज कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ना. a XOR b equal to b XOR a, मतलब ये ऑलवेज XOR की ये प्रॉपर्टीज होती हैं. ओके यू नीड नॉट टू रिमेंबर, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ओके नाउ सी एवरीवन, हमें स्वैप करना था. करेक्ट एवरीवन, वी नीड टू स्वैप देम. सो ध्यान से देखना, आई एम सेइंग a इक्वल टू कर दो a XOR b. ओके a इक्वल टू कर दो a XOR b. एवरीवन जस्ट टेल मी, a क्या था 10, b था 15,
देखो 10 का वो क्या होगा, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, कहने से 1010 एंड 15 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन विल बी दिस, करेक्ट। अब जस्ट टेल मी, एज और बी कर दिया, एज और बी क्या आएगा, कैन आई से दिस विल बिकम दिस ओनली, दैट इज 5, जैसा नो। सो यहां पे आ गया 5, करेक्ट, 5 आ गया, ओके। अभी देखो हमारा ए में आ चुका है 10 था पहले, 5 आ चुका है, बी में था 15, अभी 15 ही है। नाउ आई एम सेइंग व्हाट, देखो बी को कर दो ए जोर बी अगेन। अब देखो क्या होगा, एवरीवन यू विल सी द डिफरेंस। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अगर इन दोनों का जोर ये आ रहा है ना, तो इनमें से किसी एक दूसरे का जोर लोगे ना, लाइक इसका जोर लोगे इसके साथ, दिस विल कम, एंड इफ यू विल टेक इसका जोर विद दिस वन, दिस विल कम। अभी देखना कैसे आएगा, ट्राई कर लेते हैं। ए की वैल्यू इज 5, so 10101, we are taking zor with b, b 15 है, this will be the zor, everyone take the zor of it, can I say it will come out to be this, that is 10। तो मतलब b is equal to, अगर a और b कर दोगे यहां पे आ जाएगा 10, करेक्ट। अब देखो एक और बात, a को कर दो वापस a और b, क्या होगा, एवरीवन सी अगेन, a और b, अभी b क्या है 10, a क्या है 5, ध्यान से देखो, a है हमारा दिस, b है हमारा दिस, इन दोनों का जोर लोगे देखना क्या आएगा, 101 101 101 101। किसको किसको समझ आया कि वैल्यूज हैव बीन स्वैप्ड। देखो कितना इजी था, यहां तो तीनों बार सेम ही इक्वेशन लिखी है मैंने, इफ यू विल ट्राई टू रिकॉग्नाइज एज और बी एज और बी एज और बी, यहां पे बस ए बी ए लिख दिया, करेक्ट और नॉट, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस। इससे पता है क्या बता रहे हैं, सिंपल सी बात है, ये पता है क्यों आता है, एवरीवन देखो क्यों आता है, सिंपल सी बात है, ए और बी अगर तुमने ए में स्टोर करा दिया है एंड तुम वापस जोर ले रहे हो बी के साथ, एवरीवन सी बी में पहले हमने स्टार्टिंग में यही तो कराया था, देखो ए इज इक्वल टू एज और बी, सेकेंड इक्वेशन में जब मैं कर रहा था बी इक्वल टू एज और बी, ए की वैल्यू हो चुकी थी एज और बी, एज और बी लिखो, टोटल दिस। अब एवरीवन सी ट्रांजिटिव भी होती है ना, इसे टोटल ओपन कर लो, कहने से बीस और बी जीरो हो जाएगा, बीस और बी जीरो हो जाएगा, एंड एवरीवन नो कि ए और जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू ए, जैसा नो चेक कर सकते हो, लाइक 1010 का अगर 000 के साथ इफ यू विल टेक जोर 000 101 000 101, सेम नंबर आया, ए जोर जीरो के साथ लोगे तो बी जोर बी जीरो हो गया, ए जोर जीरो विल बी ए, तो कहने से बी एज बिकम ए नाउ, बी एज बिकम ए नाउ। तो अब देखो आफ्टर दिस मैं क्या कर रहा हूं, इधर पे आ जाओ, ए इज इक्वल टू, ए क्या था ए जोर बी, और जोर बी कर रहा था बट बी की वैल्यू इज नाउ ए। अब ये करोगे तो क्या होगा, देखो ए जोर ए जीरो हो जाएगा, जीरो जोर बी बी हो जाएगा, किसको किसको समझ आया, ए इक्वल टू बी हो गया, बी इक्वल टू ए हो गया, दैट्स हाउ इट इज वर्किंग। एवरीवन गॉट दिस, स्वैपिंग के मेथड्स, जस्ट इंटरचेंजिंग द वैल्यूज ऑफ टू, ओके। सो ये थोड़ा सा खुद से रिवाइज कर लेना, ओके एक बार ट्राई करना कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली दीज थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड से ज्यादा यू नीड टू लर्न इट, ओके कि कैसे हो रहा है ये सब। एक बार जस्ट यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस ना यूजिंग दिस, यू विल ऑलवेज रिमेंबर इट, इतना ज्यादा कोई टफ चीज नहीं है, ओके। नाउ एवरीवन सी बट आई वाज सेइंग विदाउट यूजिंग स्पेस, एवरीवन गॉट इट, स्वैपिंग आई होप एवरीवन गॉट इट, ओके। नाउ सी पास बाय वैल्यू बता रहा था, नाउ कम से लेट्स सी, एक मैंने फंक्शन बनाया स्वैप का, ओके एवरीवन सी व्हाट विल हैपन, और एनी फंक्शन मैंने एक फंक्शन बनाया, इट इज टेकिंग int a, it is taking int b, okay, definition is like whatever a was ना, a को बना दो 10, b को बना दो 15, okay, बस इतना वर्क है, गॉट इट एवरीवन।
मतलब वट एवर ए आ रहा है ना उसे बना दो 10, बी को बना दो 15, दैट्स इट। ओके, नाउ सी एवरीवन, मेन फंक्शन में क्या कर रहा हूं, आईएनटी मेन फंक्शन में बस इतना सा कर रहा हूं। देखो यहां पे बनाया एक आईएनटी x इज इक्वल टू 30, आईएनटी y इज इक्वल टू 50। ओके एवरीवन सी, आई एम गोइंग टू डू इज फंक्शन कॉल कर रहा हूं, व्हाट आई एम पासिंग x एंड y, got it everyone, x and y, and here I am doing is, everyone see, first of all here I am doing C out A B, and I am doing here C out X Y. Okay, okay, थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग करूं? एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आउटपुट बताओ, एवरीवन टेल मी द आउटपुट फॉर दिस। बी क्विक, अरे दोनों देखो, उत्कर्ष सिर्फ इतना आंसर नहीं होगा, ऑर्डर भी सही होना चाहिए। करेक्ट हर्षा, गुड। Good Aditya, correct Michelle. So obviously what will happen here is, everyone see, try to understand what will happen is, रुचित 20 कहां से आ रहा है, देखो मेन से स्टार्ट होते हैं, आईएनटी x इक्वल टू 30, एक x के लिए 30 बन गया, मेमोरी एलोकेट हुई 30 हो गया, आईएनटी y इक्वल टू 50, समवेयर इन द मेमोरी 50 के लिए भी एलोकेट हो गया y के लिए, करेक्ट। नाउ एवरीवन सी, फन xy, x के लिए क्या, देखो यहां पे जा रहे हैं आईएनटी a, एक वेरिएबल बन रहा है a के लिए, करेक्ट। a में वैल्यू क्या आ रही है, whatever value was in x, तो यहाँ पे वैल्यू कॉपी हो रही है a के अंदर, किसकी, x की वैल्यू 30 आ गया, करेक्ट। y की वैल्यू कॉपी होगी, एक b के लिए मेमोरी बनेगी, y की वैल्यू 50 इसमें कॉपी है। एवरीवन अंडरस्टूड इट टिल नाउ? व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस, यहां पे आएंगे a इक्वल टू 10, यहां पे हो गया एवरीवन सी, यहां पे हो गया 10, यहां हो जाएगा 15, करेक्ट, 10 और 15, देन वी विल गो हियर एंड व्हाट विल बी प्रिंटेड, a की वैल्यू हो जाएगी 10, यहां से प्रिंट हुआ 10 एंड 15, गॉट इट। देन वी विल मूव हियर, अब बताओ x एंड y की वैल्यू, ऑब्वियसली x में है 30 एंड y में है 50, करेक्ट, सही है ये। अब एवरीवन जस्ट टेल मी नाउ व्हाट विल हैपन, देखें कितने लोग इसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो देखने वाली चीज है। हाँ, नाउ टेल मी एवरीवन, मुझे पता है अभी गलत करोगे तुम लोग, कुछ ना कुछ तो होंगे जो गलत करेंगे। गुड सिमरन, करेक्ट, करेक्ट सत्यम, करेक्ट रुचित, उत्कर्ष करेक्ट, कन्हैया करेक्ट, अच्छा कोई गलत नहीं बता रहा, करेक्ट वेदिका, सो ऑब्वियस थिंग इज देयर, करेक्ट किरण, देखो ऑब्वियस है ना, ये ए और ये ए डिफरेंट है, समझो, यहां पे भी मेमोरी बनेगी ए के लिए, यहाँ पे ए यहाँ पे बी बन रहा है, बट दिस ए एंड दिस बी टीचर कौन है, अरे बस बस, देखो ये ए और ये बी है, मेन वाले हैं, मेन वाले, ये हैं लोकल टू फन, ये फन वाले हैं, करेक्ट और नॉट, इनके स्कोप दोनों के अलग अलग है, सब कॉस्टियस हो गए आपने पहले ही वार्निंग दे दी ना, चलो ठीक है फिर तो, ऐसे गड़बड़ मत करना, ठीक है, समझ गए ना, ये इसके लोकल है, यहां पे चेंज करोगे इनमें नहीं चेंज होगा, गॉट इट, ये इसके लोकल है, ये इसके लोकल है, ओके, सो आंसर विल रिमेन द सेम, बट एवरीवन सी, ये तो कॉन्सेप्ट समझ गए, बट अब ये था पास बाय वैल्यू, एवरीवन सी, ये था पास बाय वैल्यू, ये कोड पे आ जाते हैं,
ये था पास बाय वैल्यू, बट एवरीवन सी, अगर यू आर डूइंग हियर, देखो ध्यान से देखना इधर, अगर यहां पे ना ऐसे लिख रखा है, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा जगह बनाओ, INT एम्परसेंट ए, एवरीवन एम्परसेंट साइन देखा था ना, एड्रेस ऑफ वो, अभी एड्रेस को भूल जाना, INT एम्परसेंट बी, एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कहीं भी ऐसा देखो ना तो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग ना, सी इसे कैसे रीड करोगे, पहले हमने पढ़ा था पास बाय वैल्यू, अब आ गए हम पास बाय रेफरेंस पे, ओके ये पास बाय रेफरेंस है, जब भी एम्परसेंट देखो पास बाय रेफरेंस, अब एवरीवन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तुम्हें समझा दूं, सिंपल सी चीज है, ये हटा दो, वापस फ्लो बनाते हैं, देखो INT x इक्वल टू 30, x के लिए एलोकेट हुआ 30 रखा, INT y इक्वल टू 50, y आया 50 आया, फंक्शन एक्स वाई, बट देखो x आया इधर, INT एम्परसेंट ए, कहीं भी लिखा होगा ना फंक्शन के अंदर एम्परसेंट लिखा है, नॉर्मल वैल्यू कॉपी नहीं होगी, एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब है a इज नथिंग बट जस्ट अ डुप्लीकेट नेम ऑफ x, समझ आया, जो x जिस चीज को पॉइंट कर रहा था, जिस एड्रेस को, a will also start pointing to this, so this is a also, getting everyone, and INT ampersand b, y equal to 50, so this is going to be b also, so these are just names of the same memory, whatever memory was pointed by x now, that memory is also pointed by a, so that means it is just a alias name, got it, it is nothing but same name, memory same hai but different names hai, got it, everyone got this or not, अब now everyone tell me the output for this, output is so simple, you will go here, a is this pointing to this, b is pointing to this, a equal to 10, कहां पे है a, यहां ही तो है a, यहां पे हो गया 10, b equal to 15, यहां आ गया 15, now everyone see out ab, ये तो 10 15 ही प्रिंट हुआ, बट व्हेन यू विल कम हियर आफ्टर प्रिंटिंग दिस सी आउट x, x की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे ये नहीं प्रिंट होगा पास बाय वैल्यू की तरह, अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा एवरीवन, x में क्या वैल्यू थी 10 और 15, किसको समझ आया, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, एवरीवन गॉट दिस पार्ट, एम्परसेंट कहीं भी लिखा हो दैट मींस जस्ट अ एलियास नेम, मेमोरी नहीं, अलग से मेमोरी नहीं बनेगी, इट इज जस्ट पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी, ओके ठीक है, वी गॉट इट, तो एवरीवन एक बार मुझे इसका आउटपुट बता देना, ओके मैं कोड लिखता हूं जल्दी से, ओके सी है एवरीवन, जुड़वा भाई जो सेम घर में रहता है, हाँ गुड, ऐसा ये तो तुम ज्यादा ही एनालॉजी बना रही हो, मैं डर रहा हूँ अब, ठीक है, अब देखो एक बार, मैंने लिखा INT a इक्वल टू 10, एवरीवन सी, INT b इक्वल टू 15, ओके मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, एवरीवन सी, स्वैप फंक्शन a कॉमा b, ओके सी आउट वैल्यू ऑफ a b, void swap function, it will get a integer a, it will get a integer b, and see everyone, INT temp is equal to a is equal to b is equal to temp, that's it, यहां पे लिख रहा हूं सी आउट a b, everyone tell me the output of this, code is in front of you, be quick, ज्यादा टाइम नहीं लगाना इसमें,
क्या नहीं, मिशेल रॉन्ग है आई थिंक। Yes, obviously correct. Satyam, Arsh, Utkarsh. Good. That's the simple thing. देखो, what is happening? I told you this is simple pass by value. What is going to happen? यहाँ पे आए एक A बना जिसमें 10 है। यहाँ पे आए मेन से ऑलवेज एंट्री होती है ना, मेन सबसे पहले रन होता है। B आए 15 हुआ। अब देखो स्वैप ए बी फंक्शन कॉल हुआ, इंट ए पास बाय रेफरेंस नहीं है, अलग से मेमोरी बनेगी। गॉट इट? एक ए बना स्वैप वाले फंक्शन का, ये स्वैप वाले फंक्शन का ए है, इसमें आई वैल्यू कॉपी होगी 10, करेक्ट। एक बना बी, ये इसका भी है, स्वैप वाले का भी, करेक्ट, इसमें आई 15। देन दिस इज स्वैपिंग ऑपरेशन, यस या नो? स्वैपिंग ऑपरेशन क्या होगा, यहां मैं कह सकता हूं here it will come 15 and here it will come 10. Then what we are printing? See out A and B. So print होगा 15 10. Got it? Okay. Then this function is complete. We will come here. See out A B. A कौन सा प्रिंट होगा? अपना वाला ना, जहां पे प्रिंट होगा 10 and 15. So जिसका आंसर था 15 10 10 15, that was correct. Got it everyone? Correct or not? ठीक है। Now everyone tell me the output of this. Correct Aditya. Correct Utkarsh. सिंपल है। देखो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इंट ए इक्वल टू 10, ए बना 10 आया, इंट बी इक्वल टू 15, बी बना 15 आया। गॉट इट? नाउ स्वैप ए बी पास बाय रेफरेंस, सो दिस ए इज नथिंग बट दिस ए ओनली। गॉट इट? पास बाय रेफरेंस, सेम नेम, सेम मेमोरी, डिफरेंट नेम बी। नाउ इनके बीच में स्वैप हो रहा है, इन दोनों ए बी में, बट डोंट यू थिंक मेमोरी तो सेम को ही पॉइंट कर रहे हैं, वैल्यू तो दोनों में चेंज होगी। यहां पे आ जाएगा 15, यहां पे आ जाएगा 10। क्या प्रिंट होगा? यहां तो होगा ही प्रिंट 15 10, यहां पे जब जाएंगे इन ए की वजह से क्या वैल्यू है, इस ए की भी 15 है, इस बी की भी 10 है। एवरीवन गॉट दिस और एनीवन इज हैविंग डाउट इन दिस? वेदिका थोड़ा रॉन्ग हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? पक्का? स्वैपिंग के बाद यहाँ पे कैसे हो जाएगा? ओके चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस का बताओ ना, कंफ्यूज हो रहा हूँ मिशेल। अभी समझे नहीं, रेफरेंस वही तो बता रहा था, रेफरेंस मींस नथिंग। यहाँ पे जो ए बी बने थे क्या होगा, इधर पे आए, चलो मैं नेम डिफरेंट ले लेता हूँ यार। यहाँ पे एक्स है, देखो मिशेल, यहाँ देखो ध्यान से। आई एम सेइंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मेन से ऑलवेज वी एंटर ए इक्वल टू 10, ए में 10 डाला, बी इक्वल टू 15, बी में 15 डाला, करेक्ट? ओके। स्वैप ए बी, मैंने क्या बताया था मिशेल, अभी क्लास में थी, whenever you see pass by reference, जब भी एम्परसेंट दिखे पास बाय रेफरेंस है। ओके, पास बाय रेफरेंस इससे क्या होगा, ए की वैल्यू एक्स में हम बोल रहे हैं, एक्चुअल में नहीं, पास बाय रेफरेंस है ना, तो एक्स इज नथिंग बट जस्ट अ डिफरेंट नेम टू दिस सेम मेमोरी। अभी तक बताओ इस मेमोरी का नेम क्या था, वेयर एवर इट वॉज डिफाइंड इन द मेमोरी? ए था ना, अभी तक इसे ए से नाम से जाना जाता था, करेक्ट? इस मेमोरी को बी से। But now I am saying int ampersand x it is written na, nothing, x is nothing but just a same memory that is a is pointing to, and it is just a different name. X is also pointing to the same memory, whatever is pointed by a. B is pointing this int ampersand y.
बी की वैल्यू आ रही है, y इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू दिस। अब देखो स्वैप किस किस के बीच में हो रहा है, आईएनटी टेम्प इक्वल टू x, टेम्प में आया x की वैल्यू क्या है 10 है ना, 10 को पॉइंट कर रहा है, 10 आया। x इज इक्वल टू x में आया y की वैल्यू 15 थी, 15 आ गई, यहां पे आ गई 15, गॉट इट, यहां आ गई 15। नाउ y इज इक्वल टू टेम्प, टेम्प में था 10, y में आ गया 10, यहां आ गया 10। अब नाउ एवरीवन सी, जस्ट टेल मी यार, अब यहां पे आए प्रिंट करा x की वैल्यू 15, y की वैल्यू इज व्हाट, y की वैल्यू इज व्हाट 10, करेक्ट ना? ओके 15 एंड 10। नाउ यहां पे आए जब ये फंक्शन खत्म हो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, a की वैल्यू क्या है नाउ, डोंट यू थिंक a की वैल्यू इज 15, जो दिख रहा है वही तो लिख रहा हूं, b की वैल्यू इज व्हाट 10, तो 15 10 15 10, आंसर नहीं आया समझ में? अब समझ आ गया? चलो ठीक है, अब एक बार समझ लेते हैं पास बाय पॉइंटर्स। ओके, सब लोग समझो, यहां पे इंस्टेड ऑफ एम्परसेंट अगर मैं पॉइंटर लिख दूं तो इट बिकम्स पास बाय पॉइंटर। बट एवरीवन जस्ट टेल मी, पास बाय पॉइंटर है, जब आईएनटी पॉइंटर x लिखते हो व्हाट डज दैट मीन? कोई मुझे बता सकता है? अरे x इज अ पॉइंटर टू इंटीजर, डोंट यू थिंक तुम्हें एड्रेस पास करना पड़ेगा? यस या नो? ऑब्वियसली a एंड b का एड्रेस पास करना पड़ेगा, बिकॉज व्हाट, a x and y is a pointer to integer, that is it is a address storing memory, correct? y is also a address storing memory, don't you think ampersand a and ampersand b पास करना होगा, एड्रेस ऑफ a एड्रेस ऑफ b? तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, एवरीवन सी, क्या होगा, पहले यहां पे आओ, आईएनटी a समझ लो ये एड्रेस था 1002, इस पे ये a है, यहां पे 10 वैल्यू पड़ी है, ये एड्रेस 1002 है। एक समझ लो 2006 पे b एलोकेट हुआ है, यहां पे वैल्यू 15 है, एवरीवन सी। देन वी आर डूइंग इज आईएनटी पॉइंटर x, कोई x है, एवरीवन सी, x है, दैट इज द एड्रेस स्टोरिंग मेमोरी, इट इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ व्हाट, एम्परसेंट a, करेक्ट? एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ a is 1002, that means it is pointing to this, correct? आईएनटी पॉइंटर y, कोई y एड्रेस स्टोरिंग मेमोरी है, इट इज हैविंग एड्रेस ऑफ व्हाट, b, that is it is pointing to this. Now everyone see, I am just saying is, you are going to see temp is equal to, everyone, is it correct to write like this, int temp is equal to x? अरे x is a address ना, x so 1002 नहीं होता है, actually it is a hexadecimal address, so you have to write, don't you think, pointer x, value at x, yes or no? Obviously. Now value at x is equal to value at y, and value at y equal to temp, and finally print कर दो value of x and value of y. Don't you think it is a good way of swapping? देखो what is going to happen, everyone ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ये हुआ, यहां तक समझ आया था यहां पे? अब देखो आई एम सेइंग आईएनटी टेम्प, एक टेम्प वेरिएबल बना, देखो टेम्प वेरिएबल में क्या डाल रहा है, वैल्यू एट एक्स, एक्स में है 1002, वैल्यू एट दिस एड्रेस इज 10, टेम्प में 10 आया, वैल्यू एट एक्स में क्या करो, जो एक्स जिसे भी पॉइंट करे इस जगह वैल्यू डाल दो, पता है क्या, वैल्यू एट वाई, वैल्यू एट वाई इज 15, सो यहां आ गया 15, एवरीवन गेटिंग इट, यहां आ गया 15, देन वैल्यू एट वाई में डाल दो टेम्प की वैल्यू, टेम्प की वैल्यू थी 10, वैल्यू एट वाई में डाल दो 10, करेक्ट? नाउ सी व्हाट वी हैव टू डू इन द लास्ट, एवरीवन सी, pointer x, value at x is what, 15, value at y at what, 10, तो 15 10, एवरीवन अब यहां पे आके बता दो क्या प्रिंट होगा, a की वैल्यू इज व्हाट, अरे a तो स्टिल इसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है ना यार, a की वैल्यू 15 होगी, b की वैल्यू इज व्हाट 10, सबको समझ आया कैसे वर्क कर रहा है? सो किस किस को एक बात समझ आई, कॉपी में
change in the function is not reflected in the original values, but pass by value and pass by reference में यहाँ के भी वैल्यू वेरिएबल्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, यस है नो, जैसे इसमें हो रहा था, बट पास बाय वैल्यू में सिर्फ यहाँ चेंज होता था, यस है नो। सबसे पहले वाले में याद है ना 15 10 एंड 10 15 आंसर था, ओके। सो पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय पॉइंटर में जो चेंजेस यहां हो रहे हैं दैट विल बी रिफ्लेक्टेड हियर आल्सो, एंड पास बाय वैल्यू में जो चेंजेस यहां हो रहे हैं ना वो यहां नहीं रिफ्लेक्ट होंगे जहां से आए हैं, दैट इज द सिंपल थिंग, ओके। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ओके। नाउ एवरीवन, हमने एरेस कल पढ़ा था, करेक्ट। अब थोड़ा वापस आते हैं, हमने कल पढ़ा था एरेस, ओके। नाइस एक्सप्लेनेशन, गुड, चलो थैंक यू। अब देखो एरेस पढ़ा, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली ना स्ट्रिंग इज नथिंग, स्ट्रिंग इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स। अभी के लिए समझो, एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एरे ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग, डोंट वरी अभी बता दूंगा, ओके। अभी के लिए यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, दिस इज अ बेटर डेफिनेशन। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मैंने बताया था ना फर्स्ट क्लास में ही, स्ट्रिंग इज व्हाट, डबल कोट्स के अंदर एनीथिंग दैट यू आर राइटिंग, रोहित, श्रीधर, हर्षा, करेक्ट, anything that you are writing in double quotes is what, string। and everyone just tell me single quotes में अगर एक चीज कुछ भी लिख रहा हूं, this is what, character, okay। so सबको समझ तो आ ही रहा होगा ना कि it is nothing but character से ही तो मिलके बनती है string, correct। so everyone what exactly memory में क्या हो रहा होगा जब ये रवीत लिखा है ना, we have written like this, so actually ना memory में क्या हुआ होगा, each character take how many byte, 1 बाइट ना, करेक्ट। अब 1 बाइट है, समझ लो एक ब्लॉक बॉक्स 1 बाइट का है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ना, देखो आर के लिए 1 बाइट में आर लिख दिया जाएगा, नेक्स्ट में ए, वी, एक्चुअली बाइनरी में लिखा है, मैं जस्ट वे ऑफ राइटिंग लिख रहा हूं, ओके, टी, करेक्ट। और पता है स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे में भी डिफरेंस अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, डोंट वरी, ओके। ये लिख दिया रवि, समथिंग लाइक दिस हैपेंस, ओके। इफ यू लाइक राइट लाइक दिस ना, स्ट्रिंग x is equal to Ravi, तो x is pointing to this, जैसे मैंने बताया था ना एरे में बेस स्टार्टिंग एड्रेस को रखता है, सेम वैसे ही हर चीज वैसे ही है। अगर एरे में जैसे हम एक्सेस कर सकते थे, लाइक आई वांट टू एक्सेस दिस, जस्ट एवरीवन टेल मी व्हाट आई हैव टू राइट, कैन आई से x का जो हमें पता है ना पॉइंटर से कैसे होता है, 0 पे ये होता है पहला एक्सेस करना है, अगर थर्ड एक्सेस करना है एलिमेंट x ऑफ 2 लिखना पड़ेगा। ith एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें i-1 इंडेक्स पे जाना था, करेक्ट। थर्ड एलिमेंट के लिए हमें 2th इंडेक्स पे जाना है, 2, फोर्थ एलिमेंट के लिए थर्ड इंडेक्स, फिफ्थ एलिमेंट के लिए फोर्थ इंडेक्स, एवरीवन गेटिंग इट। देखो अभी सिंपल सा एक डिफरेंस बताता हूं स्ट्रिंग और अभी कैरेक्टर एरे में, ओके। अभी चलो एक बार स्विच करते हैं VS कोड स्क्रीन पे, ओके। मैं ये रिमूव कर रहा हूं, अच्छा रिमूव क्यों करना, यहां ही रहने दो, हाँ। स्ट्रिंग डॉट cpp, स्ट्रिंग वन डॉट cpp, देखो एवरीवन व्हाट आई हैव सेड अबाउट एरेज, एरेज इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, okay। what I have done said for string, string is a collection of characters, and everyone tell me chalo what is this character, arr of 10 I am writing 10, if 7 लिख देता हूं, चलो अपना नाम नहीं बार बार लिखूं, सिमरन लिख देता हूं, IMRAN,
ओके, ऐसे करके इनिशियलाइज कर सकता हूं। एक देखो, एक ये वे होता है इनिशियलाइजेशन का, गेटिंग इट। अभी देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, किस किस ने देखा कुछ एक्चुअली में मेमोरी में कैसे है, देखो कैरेक्टर, अरे अरे यार रुक जा भाई, रुक ही नहीं रहे तो। हाँ अब देखो किस किस को दिख रहा है, 7 के लिए एलोकेट हुआ है। देखो अभी एक एलिमेंट रिमेनिंग है ना, चलो कोई बात नहीं। देखो 83, 105, 109, 104, 97, ये इनके वो है ना नंबर्स, आस्काई वैल्यूज चेक कर सकते हो। एक ही जगह 97 आ रहा होगा, करेक्ट। आस्काई वैल्यूज के बारे में पता ही हमें, और उनको टाइपकास्ट कर रखा है कैरेक्टर्स में। ऐसे ही तो वर्क करता ही है, कैरेक्टर हम स्टोर करते हैं, वी ऑल नो दैट। ओके, 7 के लिए एलोकेट किया है, 7th भी कुछ कर देते हैं इसमें फिट। 7 लेंथ का किसी का नाम है क्या, चलो 6 लेंथ ही कर देते हैं ना। ओके, सो अभी मैंने ये लिखा, एवरीवन सी, जैसे मैंने यहां पे किया सी आउट, एवरीवन जस्ट टेल मी द आउटपुट फॉर दिस। क्या होगा इसका आउटपुट? करेक्ट, सैम, ऑब्वियसली। देखो बताया था ना, ऑलवेज ये होता है जीरो इंडेक्स, 1 2 3 4 5, जीरो से स्टार्टिंग होती है। जीरो पे क्या है, एस, एस आ गया। 4 पे क्या है, ए आ गया। 2 पे क्या है, एम आ गया। सैम विल बी प्रिंटेड। ओके, दैट्स फाइन। अभी देखो ये तो समझ आई कि हाँ कैरेक्टर एरे बनाया। ऑब्वियसली कैरेक्टर एरे इज व्हाट, ARR इज अ कलेक्शन ऑफ 6 कैरेक्टर्स, 6 कैरेक्टर डाल रखे हैं। एवरीवन, मैंने तुम्हें कुछ, एक बार याद है तुम्हें, मैंने तुम्हें कुछ बताया था कि जब हम कैरेक्टर एड्रेस पास कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर, जो पॉइंटर्स पढ़ाया था, इफ यू रिमेंबर कि कैर पॉइंटर, जब मैं सी इक्वल टू यहां पे बनाया था कैर एक्स इज इक्वल टू ए, और मैं ये कर रहा था एम्परसेंट एक्स, एंड जब व्हेन आई वाज ट्राइंग टू डू दिस पॉइंटर, नहीं ऑन एड सी, नॉर्मली सी क्या होता है, एड्रेस स्टोर करता है, एड्रेस प्रिंट करता है। बट एवरीवन, ऑल ऑफ यू रिमेंबर ना, कैरेक्टर के केस में एक्सेप्शन आ रहा था, यस या नो? किस किस को याद है वो? एवरीवन रिमेंबर ना वो एक्सेप्शन? एक्सेप्शन क्या था, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द एड्रेस, हम एड्रेस वैसे कैसे वॉइड पॉइंटर से कर पा रहे थे, याद है ना? मैंने तुम्हें बोला था किस, कोई लोग बताओ क्या कर सकते हो अगर एड्रेस ही प्रिंट करना है, तो वॉइड वाले से बताते हैं। बट एवरीवन सी डोंट एबल टू रीड। हाँ सिमन क्या बोल रहे हो, इसके बारे में बता रहे हो, मेरा नहीं पढ़ पा रहे हो क्या? मेरी राइटिंग इतनी गंदी है, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हूं? एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा था, यस करेक्ट। नो सर, अच्छा फिर ठीक है। तो देखो सी आउट सी, सो सी आउट सी में क्या हो रहा था, एक्चुअली इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द एड्रेस, वट एवर एक्स का जो भी एड्रेस है, इट वॉज प्रिंटिंग ए। इफ यू ऑल रिमेंबर, अभी भी जैसे मैं शो कर सकता हूं, लेट्स सी, यहां पे कर दें, ट्राई कर लेते हैं क्या दिक्कत है। ऊपर सैम प्रिंट करा देते हैं, यहां पे लिख देते कैर p इज इक्वल टू लाइक r and then what, char pointer x is equal to ampersand p, सी आउट x, हमें तो एड्रेस प्रिंट करना है, प्रिंट करते हैं, देखते हैं व्हाट विल बी प्रिंटेड। एवरीवन सी, एज सून एज आई रन इट, देखो क्या प्रिंट होगा, समझ आया? देखो अभी इसे भूल जाओ। अभी इसे भूल जाना, क्या ये हुआ है प्रिंट, अभी भूल जाओ। कुछ दिख रहा होगा, कुछ रैंडम सा प्रिंट हुआ है, करेक्ट। अभी मैं समझाऊंगा ये रैंडम सा क्यों प्रिंट हुआ है, अभी इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं। ओके, एक और बार रन करूंगा, मे बी डिफरेंट आंसर आए, अगर डिफरेंट एलोकेशन होगा, देखते हैं। कुछ टाइम रन करोगे, देखो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि कहां पे इनिशियलाइज हो रहा है। चलो, अभी के लिए ये समझ आ रहा है कि मैंने यहाँ पे डाला सी
बट इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द एड्रेस ये कुछ और ही प्रिंट कर रहा है। देखो आर तो प्रिंट कर ही रहा है, एवरीवन सी आर तो प्रिंट हो रहा है, बट आगे सिमरन भी प्रिंट कर रहा है और कुछ स्पेस देके ए भी प्रिंट कर रहा है। करेक्ट एवरीवन? तो मैं वो बताया था ना कि एक्सेप्शन के कारण इट वाज नॉट गिविंग अस द करेक्ट आंसर। नॉर्मली अगर ऐसा करते थे इन केस ऑफ इंट, फ्लोट, लॉन्ग, एनीथिंग, तो एड्रेस प्रिंट होता था। करेक्ट? वैल्यू ऑफ एक्स नॉट एबल टू रीड बिकॉज ऑफ 1 बाइट। अभी अभी देखो जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ओके, नॉर्मली एड्रेस प्रिंट होता था, बट यहाँ पे कुछ रैंडम सा प्रिंट हो रहा है। पहले तो देखो ये आर तो प्रिंट हो ही रहा है, बट इसके आगे भी कुछ प्रिंट हो रहा है। अभी समझ आएगा क्यों। देखो अगर मैं, देखो ये तो प्रिंट हो ही रहा है, एक चीज देखना, सी आउट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ए आर आर। एवरीवन सबको पता है ना ए आर आर क्या होता है? अब ये एरे है जिसमें सिमरन है, यहाँ पे जो जीरोथ वाला एलिमेंट होता है इसी का तो होता है बेस एड्रेस। एवरीवन रिमेंबर ए आर आर इज जस्ट द बेस एड्रेस। करेक्ट? अब बेस एड्रेस से देखो मैंने यहाँ पे ए आर आर लिखा है, ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो एड्रेस। देखना प्रिंट क्या होगा अगर मैं रन करूंगा। ओहो, रन हो जा। देखो रन करने के बाद प्रिंट क्या हो रहा है, किस किस ने ऑब्जर्व किया कुछ? नहीं, ये देखो इससे तो सैम प्रिंट हुआ, यहाँ पे एक्स डाला तो ये आर, फिर आगे कुछ सिमरन लिखा हुआ है। देन व्हेन आई प्रिंटेड ए आर आर, तो सिमरन तो प्रिंट हुआ, कुछ और भी प्रिंट हुए कैरेक्टर्स। करेक्ट? जैसे नो, अच्छा ये हो क्या रहा है? एक्चुअली हो क्या रहा है, किसी को कुछ समझ आ रहा है हो क्यों रहा है ये सब? मैंने एक चीज बताई थी तुम लोगों को, देखो कि सी आउट कैसे वर्क करता है। एज सून एज इट सी सम एड्रेस एंड इट सी कि ये कैरेक्टर एड्रेस है, गॉट इट, कैरेक्टर वाला एड्रेस है कोई, तो पता है क्या करता है सी आउट, वहां से प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है। ओके, पता है कब तक करता है? जब तक एक स्लैश नल कैरेक्टर होता है, ये कैरेक्टर, जब तक ये मीट ना कर जाए। ओके, समझ आया? अब एवरीवन देखो क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है। जब तुमने ये किया, देखो पॉइंट कैरेक्टर पॉइंटर दिस सी आउट सी, सो आगे कहीं सिमरन भी लिखा था, मैं बोल रहा हूँ जस्ट यहाँ पे आर, यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ था, तुमने ये किया था पी, यहाँ इसमें पी पॉइंट कर रहा था, इसके आगे तुम्हारा ए आर आर का बेस एड्रेस था, यहाँ पे ए आर आर, मैं छोटा कर देता हूँ। देखो ए आर आर का बेस एड्रेस था, यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ था एम आर ए एन। समझ लो आगे कुछ और भी बॉक्सेस थे, आगे बॉक्सेस में एक तो वो सिंबल समझ ही आ रहा है, कुछ ऐसे करके कुछ कैरेक्टर है, फिर एक स्पेस था। देन एवरीवन सी, ध्यान से सुनना। ओके, स्पेस है, देन ए है, देन इसके बाद अभी ज्यादा मत सोचना, इसके बाद अभी सोचना। ओके, मैं बताया था कि स्लैश नल के बाद एंड होता है, तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, ट्राई टू सी। ये रहा रिजल्ट। तो देखो सैम तो प्रिंट होना पता है कैसे प्रिंट हुआ, यहां पे आए आर, जैसे इसने देखा आर का एड्रेस एक्स इज पॉइंटिंग टू दिस, एक्स के पास ये वाला एड्रेस है, आर प्रिंट किया, देखो स्लैश नल नहीं मिला इसे, एस प्रिंट किया, आई प्रिंट किया, एम प्रिंट किया, आर ये कहां जाके स्लैश नल प्रिंट मिला, यहां पे। करेक्ट एवरीवन? यहां, तो इसलिए इतना लंबा प्रिंट कर दिया एक्स की वजह से। और देखो जब मैंने ए आर आर किया तो एवरीवन कहां से प्रिंट करना स्टार्ट किया, यहां पे स्लैश नल था, यहां से स्टार्ट हुआ, ए आर आर यहां का एड्रेस होता है ना फर्स्ट, तो इसके आगे वाला प्रिंट हुआ एस आई एम आर ए एन। सबको समझ आ रहा है कैसे ये प्रिंट हुआ? अभी के लिए इतना समझो, बट अभी मैं एक चीज लिख रहा हूं, एवरीवन ध्यान से देखना मैं क्या लिखने वाला हूं। यहां पे 7 कर दे रहा हूं, दिखाता हूं, एक मैं क्योंकि एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर डालने वाला हूं। एवरीवन सी, इसके बाद रन कर रहा हूं, कुछ ये आउटपुट है अभी के लिए। देखो कुछ चेंज हुए हैं क्योंकि मैंने 7 कर दिया ना, अभी समझ आएगा। एक मैं अगर सोचो यहां पे ये स्लैश नल कैरेक्टर डाल दूं, अरे सॉरी,
ओके, सोचो मैंने यहां पे अगर स्लैश नल डाल दिया होता, सोचो 7 कैरेक्टर्स हैं, अब देखो आउटपुट क्या होगा। एवरीवन ध्यान से देखो, किस किस को समझ आया कि एक्चुअली में क्या हुआ अभी। कहां से कहां ARR देखा, बेस एड्रेस से स्टार्ट हुआ, कैपिटल SIMR स्लैश नल स्टॉप, इसीलिए सिम आर प्रिंट हुआ। बस समझ आया सबको। आर के केस में क्या था, आर था RSIMR स्लैश नल स्टॉप। किस किस को समझ आया कि ये जैसे कैरेक्टर दिखता है वहीं स्टॉप हो जाता है। गॉट इट? ओके, दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। समझ आया स्लैश नल का कॉन्सेप्ट। ओके, स्लैश नल इज नॉट स्पेस, इट इज नल कैरेक्टर। ओके, अगर मैं स्लैश नल यहां लिख दूं तो व्हाट विल बी द आउटपुट? ऑब्वियसली SI, yes or no? SI RSI SR। किस किस को समझ आ गया ये चीज? क्या स्लैश नल से कैसे सी आउट करता है? सी आउट रीड करना स्टार्ट करता है, कैरेक्टर एड्रेस जैसे मिलता है, जहां तक उसे स्लैश नल ना मिले वहां तक प्रिंट करता चला जाता है। तो वही उसी हिसाब से चल रहा है। ओके, तो कैरेक्टर एड्रेस सब समझ आया कैसे प्रिंट कराते हैं। नॉर्मल एक्सेस तो हो ही सकता है, लाइक नॉर्मल एरेस की तरह, ये समझ आ गया। पर सर एक्स जब प्रिंट हो रहा है तो आर प्रिंट करने के बाद वो एरे से कंटेंट्स क्यों रीड कर रहा है? पलक देखो, एक रोम वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो पता है क्या होता है, कुछ स्टैटिक चीजें होती है ना, वो कंटिन्यूअसली एलोकेट करता है हमेशा ना, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मेमोरी में ना, फॉर फास्ट यूसेज। जैसे ये तुम्हारी मेमोरी है, देखो फॉर फास्ट यूसेज ना, फास्ट यूसेज जो नॉर्मल चीजें मिलती है ना वो कंटिन्यूअसली एलोकेट करता रहता है। जैसे यहां पे आए सिमरन कहीं लिखा, जैसे यहां पे एलोकेट किया सिमरन, जैसे तुमने किया कैरेक्टर P, यहां पे ही कर दिया उसने, कंटिन्यूअसली एलोकेट कर दिया जहां पे उसे जगह खाली मिली ना आसपास, जिससे कि क्लोज क्लोज रहे। समझ आ रहा है? इस प्रोग्राम को जितनी जरूरत पड़े सारा पास पास में मिल जाए। अब देखो आर आया, अब देखो यहाँ पे लिखा RSIMRAN, यहाँ पे तुम्हारा जैसे यहाँ पे स्लैश नल लगा दिया था, स्लैश नल, तो इसी वजह से जैसे आर का एक्स का एड्रेस मिला था, एक्स इज पॉइंटिंग टू दिस, ये एड्रेस यहां से भी स्टार्ट करोगे RSI स्लैश नल, इसीलिए इतना प्रिंट हुआ। अब ARR क्या था, ARR स्टार्ट हो रहा था यहां से, सिम से, यहां से स्टार्ट करोगे SI, दैट्स व्हाई SI प्रिंट हो रहा है। गेटिंग इट और नॉट पलक दिस थिंग? तो सर सिर्फ आर प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, आर प्रिंट करने के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा दिस, या तो देखो तुम्हें एड्रेस से फिर एक्सेस नहीं करना होगा, ध्यान से समझो, तुम्हें लिखना होगा इधर P, इधर लिख दो पॉइंटर एक्स, समझ आया, पॉइंटर एक्स, ये भी वर्क करेगा। समझ आया पलक? पॉइंटर एक्स, या तो लिख दो वैल्यू एट दिस एड्रेस। अगर तुमने एड्रेस दिया, मैंने बताया था ना सी आउट को क्या चाहिए होता, अगर उसने कैरेक्टर एड्रेस देखा तो रीड करना स्टार्ट करेगा। अभी पॉइंटर एक्स क्या है, पॉइंटर एक्स इज कैरेक्टर, वैल्यू एट एक्स, एक्स का कैरेक्टर एड्रेस, वैल्यू एट एक्स है कैरेक्टर, कैरेक्टर को देखते नहीं भागने लगता सी आउट, कैरेक्टर एड्रेस को देख के भागता है। गॉट इट? एक्स का कैरेक्टर एड्रेस जो स्टोर कर रहा था, पॉइंटर एक्स इज कैरेक्टर। एक सेकंड। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? यार और 4 भी तो आर प्रिंट करेगा ना, ऑब्वियसली करेगा। अब देखो एवरीवन, अगर मैं यहां पे एक चीज लिखूं, ARR और 4 क्या प्रिंट करेगा? एवरीवन जस्ट टेल मी। 0 1 2 3 4 5 6, ऑब्वियसली वो आर प्रिंट करेगा। अगर जो जो मेरी पुरानी क्लास में थे, ARR 4 क्या होता है? इट इज नथिंग बट पॉइंटर एट ARR
जो बेस एड्रेस प्लस व्हाट 4 इंटू व्हाट साइज ऑफ किस टाइप का एरे है कैरेक्टर साइज ऑफ कैर साइज ऑफ कैर क्या होता है 1 ना 1 तो सभी को समझ आ रहा होगा कैसे आता है यस और नो दोज हु हैव अटेंडेड द क्लास तो यहाँ पे क्या पॉइंटर है ना वैल्यू एट दिस एड्रेस हम वो थोड़ी पास कर रहे हैं एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड हम क्या पास कर रहे हैं पॉइंटर वैल्यू एट दिस एड्रेस नॉट दिस एड्रेस दैट्स व्हाई यहां से आगे रीड करना नहीं भागना स्टार्ट कर देता है क्योंकि दिस इज नथिंग बट दिस वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट यस दैट इज द कॉन्सेप्ट किसको बताओ इसमें डाउट है फिर आगे बढ़े ये कैरेक्टर एरे होता है ओके अंडरस्टूड नो डाउट प्रोसीड एनीवन just tell me quick I have to wrap up at 10 today no doubts okay क्या pointer x is equal to ampersand p so what हर्ष इससे क्या बोल रहे हो मतलब pointer x is equal to ampersand p अच्छा तुम पुराने क्लासेस में नहीं आए हो ना तो तुम पहले पुराने क्लासेस पढ़ के आओ आज ही आए हो तुम डायरेक्ट इसलिए 7 लेक्चर्स हुए इससे पहले वो सारे देख के आना तब ये सब तुम्हें सेंस लगेगा ओके हर्ष अभी तुम्हें पता नहीं कुछ सेंसलेस भी लग रहा होगा कुछ ना कुछ तो अंडरस्टूड ओके फाइन सो एवरीवन सी मैंने अभी तक क्या बताया कैरेक्टर एरे में व्हाट कैन बी डू वी कैन हैव स्लैश नल कैरेक्टर और वी कांट हैव करेक्ट यही बताया जब मैंने नहीं लिखा था तो भी वर्क कर रहा था यस नो तो भी वर्क कर रहा था करेक्ट but everyone try to understand the difference string doesn't work like this अभी बताता हूं देखो string if you will write like this string s is equal to सिमरन ही नाम देता हूं if you will do cout s if you will print it so everyone see what will going to be printed directly Simran got it किस किस को समझ आया सिमरन प्रिंट किया सो एक्चुअली पता है क्या है स्ट्रिंग भी इंटरनली कैरेक्टर आ रही है बट किस किस को लॉजिक समझ आया कि स्ट्रिंग में क्या है स्पेशल चीज जब तुमने ये लिखा ना एक एरे तो बना SIMRAN बट क्या हुआ एक इसकी लेंथ 6 थी 7 लेंथ का बना और लास्ट में एक स्लैश नल लगा दिया अपने आप एंड में ऐड होता है करेक्ट सत्यम ने बोला भी स्टेटमेंट कि स्लैश नल स्ट्रिंग में अपने आप कैरेक्टर एरे के एंड में लग जाता है समझ आ गया so string is also a character array just with slash null at the end okay कैरेक्टर एरे में स्लैश नल होना कंपलसरी नहीं है बट स्ट्रिंग में लास्ट में खुद ही अपेंड होता है बट सर साइज में काउंट नहीं होगा ये हाँ करेक्ट साइज में काउंट नहीं होगा वो इंटरनली ऐसा स्ट्रक्चर ही होता है ओके तुम इस वाले नल को एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली चलो एवरीवन गॉट दिस स्ट्रिंग एंड दिस चलो टेल मी द आउटपुट फॉर दिस जल्दी से इसका आउटपुट बताना SO1 चलो इसका भी आउटपुट बताना ओके ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा इसका आउटपुट बताना जरा मुझे देखते हैं हम्म ओ गिव मी 1 सेकंड स्क्रीन नहीं विजिबल है क्या गिव मी 1 सेकंड
ओहो, एक सेकंड। इज इट विजिबल? तो जिसका ये आंसर है, ऑब्वियसली आई एम, सॉरी, यस आई एम एन, तो ये करेक्ट है। ओके, आई एम एन। नाउ एवरीवन, मैंने बताया स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर एरे आर वेरी मच सिमिलर। सो एक बार मुझे इसका आउटपुट बताना है एवरीवन। कैरेक्टर एरे से लेते हैं, कैरेक्टर एस, देखो मैं ये लिख रहा हूं। ओके, कैन आई कंसीडर दिस इक्विवेलेंट टू अ स्ट्रिंग? यस और नो? एक्चुअली इक्विवेलेंट एग्जैक्टली नहीं इक्विवेलेंट होता, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट होता है, बट मेन कॉन्सेप्ट इज दिस ओनली। करेक्ट? तो स्ट्रिंग के इक्विवेलेंट है एवरीवन। अच्छा, मैं एम लिखना भूल गया यहाँ, गुस्सा मत होना सिमरन, एम लिखना भूल गया तो भी। ओके, अब देखो, अगर मैंने यहां लिखा ओके, tell me the output of this everyone, tell me the output of this. सिमरन टू ये क्या लिख रहे हो यार? यस, श्रीधर, आई थिंक इट इज करेक्ट। सो जिसका ये आउटपुट आया है दैट इज करेक्ट। देख लो, एम, एम आर ए एन, वाई एवरीवन, मैंने बताया तो था। किस किस को ये आ गया था? श्रीधर का आया था। ओके, और किसका आया था? किसी का नहीं, बस श्रीधर का आया एक। यार ये ना करो यार, सीरियसली, क्या बताया था मैंने? देखो, सब लोग इधर आओ, कैसे एलोकेट होता है? एस आई एम आर ए एन स्लैश एन, नेशनल। ओके, आ गया, गुड। तो देखो, ये मैंने बताया था बेस एड्रेस होता है। ओके, ये बेस एड्रेस होता है। मैंने व्हेन आई राइट लाइक दिस पॉइंटर एस प्लस टू, क्या बताया था? अगर ये 1000 है, क्या काम करेगा? 1000 प्लस 2 कैसे वर्क करेगा? 2 इंटू साइज ऑफ कैरेक्टर, साइज ऑफ कैरेक्टर इज 1, 1002 पे जाएगा। ये 1001 है, ये 1002 है, यहाँ पे आया, पॉइंटर लिखा है यहाँ पे, वैल्यू एट एस प्लस टू, वैल्यू एट दिस इज नथिंग बट एम। करेक्ट? एम ही तो है यहाँ पे वैल्यू। बट अगर मैंने स्पेस दिया, इसके बाद मैंने लिखा एस प्लस टू, मतलब 1000 लिखा, टू। अब एवरीवन, जैसे एड्रेस मिला सी आउट को, ये पॉइंटर वैल्यू एट एस प्लस टू इज डिफरेंट थिंग, ये वैल्यू थी। बट जैसे इसे एड्रेस मिला एस प्लस टू 1002, क्या करेगा? यहां से रीड करना स्टार्ट करेगा। कब तक? जब तक स्लैश ना मिले। तो एम आर ए एन ये प्रिंट हो गया। सच में अभी तक ये भी नहीं बना था? कितने लोगों से ये नहीं हुआ था? सच सच बताना, उम्मीद तो नहीं थी यार कि ऐसा करोगे। यस, सत्यम इज करेक्ट। This thing that s plus 2 is actually obviously this. करेक्ट यार, ये तो समझाया था ना कल ही मैंने, मैं आया था। गुड, गुड हर्षा।
ये तो कल ही बताया था ना, पॉइंटर s+2 इज इक्वल टू s+2 s/2। कैसे? और यहाँ पे मतलब कैरेक्टर का साइज वो है ना, इसलिए 1, दैट्स व्हाई। ओके, अभी मुझे पहले एक बार बता दो किस किस को क्या क्या कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, वो पूछ लो। Who is having confusion in this? So just ask it. Got it, sir. Good, Lokesh. Understood now. Good. Nah, very good. और सब क्या सो रहे हो? गॉट गुड कन्हैया आ गया। हर्ष गुड। मिस्टर समझा, बहुत अच्छे। चलो, ये था थोड़ा स्ट्रिंग और ये। अब एक क्वेश्चन दूं, देखते हैं तुम्हारा पुराना कितना याद है तुम्हें। ओके, मैं यहां लिखा स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू, एक रैंडम स्ट्रिंग लिख रहा हूं, ये एक स्ट्रिंग लिखी है। ओके एवरीवन, तो योर टास्क इज, तुम्हें कोई स्ट्रिंग दी गई है, ओके, दैट कैन कंटेन कैरेक्टर्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स, कैपिटल एंड स्मॉल। गॉट इट? कैसे भी वो कर सकता है। तो योर टास्क इज ना कि स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दो। समझ आया? लाइक अगर तुम्हारे ये होता ना, RAVEET, और यहाँ पे होता है @72, इतना होता ना तुम्हारा इनपुट। सो इसका आंसर होना चाहिए था ये, कि स्मॉल लेटर वालों को कैपिटल में कन्वर्ट करो, कैपिटल वालों को स्मॉल में कन्वर्ट करो। ये स्मॉल है तो कैपिटल, ये स्मॉल है कैपिटल, कैपिटल है स्मॉल, स्मॉल है कैपिटल, और सिंबल्स और नंबर्स को सेम रखो। गेटिंग एवरीवन? सबको समझ आया? और इसके लिए ना एक फंक्शन बनाओ। फंक्शन का डेफिनेशन तुम लिखना, बस ये करना है, सी आउट कन्वर्ट, ये फंक्शन बना दो कन्वर्ट, और उसमें एस पास करो, और ये रिटर्न करे ऐसी स्ट्रिंग जो कि मतलब ये वाली स्ट्रिंग हो, ये प्रिंट होनी चाहिए। ओके, सो स्ट्रिंग कन्वर्ट, एक स्ट्रिंग एस मिल रही है हमें। गॉट इट? अब यही तुम्हें रिजल्ट स्ट्रिंग अपनी पास करनी है, इनिशियली एम्प्टी है रिजल्ट स्ट्रिंग। ओके, कौन कौन ये कर लेगा जल्दी से? हो जाएगा सर, जल्दी से फिर भेज दो, कोड लिख के भेजो। मैंने बताया था ना कि बोलने से नहीं होगा, मुझे पता है कि सोम तू तो कर लेगा, बट बोलने वाली चीज नहीं है। अगर बोल रहा हूँ लिखो तो मतलब टाइप करो। किसी का नहीं, किसी ने नहीं लिखा क्या अभी तक? चलो 2 मिनट और है।
ओके, किसी ने तो कोड भेजा है। अच्छा, सोहम ने ही सबसे पहले भेजा, प्रखर मतलब। गुड वन। Okay, the condition is you can't use these. Inbuilt function you can't use. मतलब two lower is upper is lower two lower. Okay, inbuilt function you can't use. Inbuilt function नहीं use करोगे. You can't use. You can't use. मिशेल, इससे नहीं काम चलेगा, थोड़ा सोचो। मैंने एक और बार चीज सिखाई थी मिशेल कि ऐसे नहीं लिखना। मैंने बताया था ना, नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक समवन हैज रिटन। हाँ, सत्यम। गुड। वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे। सत्यम, बट ये नंबर्स लिखने वाली आदत छोड़ो यार। जब अंदर वाला इतना अच्छा लिखा है तो ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू 97, ए आई लेस देन इक्वल टू 122, इसकी जरूरत थी क्या? चलो अभी बताएंगे। और किसी का नहीं हुआ? चलो 2 मिनट और है। हेलो। चलो ठीक है, जिसने जिसने भेजा है अच्छी बात है। ओके, बहुत ही प्रखर अच्छा कोड लिखा था, बट ये अंदर वाला फिर क्यों 37 और ये सब यूज किया? ओके, नंबर्स ज्यादा ना यूज किया करो, मतलब ऑब्वियसली करेक्ट कोड। एवरीवन सी, क्या है केस? प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है? सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग इज, कैन आई से वी हैव टू ट्रेवर्स ऑन ईच एलिमेंट, ईच कैरेक्टर। करेक्ट और नॉट? अब सब लोग जो लिख रहे हैं वो भी शांत हो जाओ और यहाँ पे देखो। ओके, लाइक सारे कैरेक्टर्स पे ट्रेवर्स करोगे, एक बार इस पे, एक बार इस पे, एक बार इस पे। कैसे ट्रेवर्स करूंगा? फॉर लूप कैन आई यूज? यस और नो? कितना फॉर लूप यूज करना पड़ेगा? चलो, बिफोर मूविंग ऑन फॉरवर्ड, कुछ मेथड्स बता देता हूं स्ट्रिंग के। ओके, एवरीवन देखो, स्ट्रिंग कहीं भी तुम लिखोगे ना, इसके साथ कुछ मेथड्स अवेलेबल होते हैं। यस, देखो, मेथड्स लाइक, ओके, मेथड्स कुछ दिखाता हूं। अभी ये मैं स्टॉप कर देता हूँ, ये फंक्शन कॉल नहीं कर रहा। ओके, लाइक एक मेथड होता है सी आउट एस डॉट लेंथ। ओके, इससे क्या प्रिंट होता है एवरीवन सी? अरे हो जा।
इससे देखो प्रिंट हो गए। ये जो भी स्ट्रिंग है ना, इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है 15। एवरीवन गेटिंग इट? एस डॉट लेंथ से हो जाता है प्रिंट इसकी लेंथ। अब देखो, अगर तुम्हें कोई कैरेक्टर, एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर तुम्हें कोई कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के लास्ट में पुश करना है, ओके एवरीवन, अभी रुको यार, कोड मत भेजो, मैंने बोला ना आदित्य, अभी जो बोलता हूं, जब पढ़ा रहा हूं तब सुना करो बस। ओके, तो देखो, अगर तुम्हें कोई स्ट्रिंग दी गई है, लाइक एक स्ट्रिंग बना लेता हूं, देखो यहां पे एक स्ट्रिंग बना लेता हूं, स्ट्रिंग ऐसी बना रहा हूं, इक्वल टू RAVEET। ओके, ऑब्वियसली लेंथ विल कम आउट टू बी 6 प्रिंट हुआ। ओके, अगर तुम्हें ना रवीत के आगे कुछ ऐड करना है, लास्ट में एक कैरेक्टर ऐड करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू ऐड अ कैरेक्टर एट द एंड ना, यू कैन डायरेक्टली डू इज s डॉट पुश बैक। ओके, एंड यहाँ पे कैरेक्टर यू कैन ऐड इट, लाइक कैपिटल ए ऐड करना था मुझे लास्ट में। सो एवरीवन आफ्टर दिस देखना, इफ आई विल डू सी आउट एस, सो देखना क्या प्रिंट होगा, 6 और रवीत ए। समझ आया? एवरीवन गेटिंग दिस? एक और बार अगर मैं कुछ पुश बैक कर दूंगा, सो एवरीवन सी एस डॉट पुश बैक, इस बार मैं कर देता हूं कैपिटल बी और वापस करता हूं सी आउट एस स्लैश एन। एवरीवन सी, ओहो सॉरी, कैरेक्टर ना, सो एवरीवन सी व्हाट विल बी प्रिंटेड, रवीत ए बी। गेटिंग इट और नॉट? यहां पे था रवीत, एक बार पुश बैक किया, नाउ इट बिकम रवीत ए। एक और बार पुश बैक की गया, रवीत ए बी। एक और बार अगर पुश बैक सी करूंगा, ये हो जाएगी स्ट्रिंग। एवरीवन गेटिंग इट? पुश बैक मेथड, एवरीवन अंडरस्टूड इट? देखो पुश करो बैक में, दैट थिंग सिंपल। एस में, एस स्ट्रिंग में, एस इज पॉइंटिंग टू दिस, इसके पुश बैक कर दो लास्ट में बी। एक और मैं लिख दूंगा एस डॉट पुश बैक सी, तो सी हो जाएगा, एस डॉट पुश बैक डी, यहां पे डी हो जाएगा। ये होता है लास्ट में, इफ यू वांट टू ऐड एनी कैरेक्टर। अगर लास्ट से तुम्हें रिमूव करना है एनी कैरेक्टर, पुश बैक है ना जैसे, वैसे ही एक पॉप बैक। देखो पॉप बैक लिख दो, मतलब डिलीट करना है, सो पॉप बैक लिख दोगे। एवरीवन सी एस करूंगा, अभी तक हो चुका था रवीत ए बी, अभी देखना प्रिंट करूंगा, फिर वापस हो जाएगा रवीत ए। गेटिंग एवरीवन? एक और बार मैं करता हूं, देखो एक और बार पॉप करता हूं, 2 बार पॉप कर रहा हूं एक्स्ट्रा, तो देखना ईच टाइम व्हाट इज हैपनिंग। देखो एक एक करके कैरेक्टर कम होते हुए दिख रहा है, यस नो? पहले बी हटा, फिर ए हटा, फिर टी हटा, लास्ट में ये बचा। एवरीवन गेटिंग इट? पॉप बैक से क्या होता है, लास्ट से कैरेक्टर हटते रहते हैं। लाइक अगर ये है तुम्हारी स्ट्रिंग, एक बार पॉप बैक किया, टी हट गया, दैट मींस रवे रह गया। एक और बार पॉप बैक किया, एक ई हट गया, रेव रह गया। एक और बार ई हटा, रव रह गया। एवरीवन गेटिंग इट? पुश बैक एंड पॉप बैक, ऑल ऑफ यू गॉट इट? ओके, नाउ एक मेथड होता है पुशबैक और पॉपबैक, वर्क करते हैं सिंगल कैरेक्टर पे। करेक्ट एवरीवन? सिंगल कैरेक्टर पे, कि एक कैरेक्टर इंसर्ट हो जाएगा, एक कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा लास्ट से। एक मेथड होता है एस डॉट अपेंड। ओके, अपेंड से क्या होगा, इट ऑल्सो एड्स समथिंग एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, बट दिस टाइम नॉट अ कैरेक्टर, यू कैन ऐड एनी स्ट्रिंग। लाइक सी, रवि के आगे मुझे स्पेस देके लाइक कुमार ऐड करना है। ओके एवरीवन सी, स्ट्रिंग ऐड की है मैंने, सी आउट एस करूंगा, एवरीवन सी व्हाट विल बी प्रिंटेड? How many of you are able to see? Now it is saying Ravi Kumar. Like if I will again do this, देखो एक और कुछ चीज अपेंड करके देखता हूं, एस डॉट अपेंड, दिस टाइम करता हूं इज योर इंस्ट्रक्टर, अगर ऐसे लिख दिया, और अगेन मैंने किया सी आउट एस, so see what is going to happen, this time in the next line it will be printed Ravi Kumar is your instructor. Everyone getting it? Pushback for single character insertion at the end, append for a string insertion at the end, pop back for single character deletion. Okay, I hope everyone got this point. चलो ठीक है, these are some methods. Okay, now एक और चीज बता देता हूं, if you want to traverse on complete string, how can you traverse?
अरे सिंपल फॉर लूप से ट्रेवर्स करें। लेंथ कैसे पता करते हैं? int n, n इज द लेंथ, कैसे फाइंड करेंगे? s डॉट लेंथ से स्टोर कर ले, यस और नो? n में आ गया s डॉट लेंथ। नाउ जस्ट यू हैव टू ट्रेवर्स फ्रॉम वेयर टू वेयर। आई नो फर्स्ट कैरेक्टर इज एट 0th इंडेक्स, i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो। कहां तक जाना है? i लेस देन n तक, जहां पे लेंथ खत्म हो जाएगी। सी आउट प्रिंट करते हैं एस ऑफ आई, एंड सारे कैरेक्टर को ना ऐसे करके सेपरेट कर देते हैं कॉमा से, जिससे विजिबल हो। सो एवरीवन सी दिस विल बी प्रिंटेड। देखो आर कॉमा ए कॉमा बी कॉमा ई ई टी, एवरीवन गॉट दिस? आर यू म्यूटेड? मैं म्यूट कहां हो गया हूं? बोल तो रहा हूं। सबको समझ आई ये चीज? ओके। सारे कैरेक्टर पे 0, जैसे रवीत है ना, RAVEET, इसके इंडेक्सेस कैसे होते हैं? 0 1 2 3 4 5। कहां से लेंथ है इसकी? n हो गया 6। कहां से कहां तक ट्रेवर्स करना है? 0 से स्टार्ट करो, i प्लस प्लस करते रहो, 1 2 3 4 5, और एज सुन एज इट बिकम 6 स्टॉप कर दो, बिकॉज 6 विल बिकम इक्वल टू 6, तो स्टॉप कर दो। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, स्टॉप। तो इतने इंडेक्स के लिए इट विल वर्क। 0 पे आ जाएगा r, फिर कॉमा से सी आउट किया है, फिर a, फिर कॉमा, फिर b, ऐसे करके कॉमा। एवरीवन गॉट दिस कि हाउ टू ट्रेवर्स ऑन अ स्ट्रिंग? Okay, if you got this, now let's come back to question. We just have to convert to what? कैपिटल को मुझे बनाना है स्मॉल, रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर को इग्नोर करना है। सो एवरीवन सी कितना सा इजी है। थोड़ा बैक जाते हैं, अभी देखो कितना इजी है। ओके देखो, ये स्ट्रिंग दी है, अभी देखो कैसे करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। int n, लेंथ लिख देता हूं, लेंथ इक्वल टू s डॉट लेंथ। करेक्ट, लेंथ फाइंड होगी। कहां से कहां? ईच कैरेक्टर पे ट्रेवर्स करना है। सो ईच कैरेक्टर स्टार्ट होते हैं int i इक्वल टू 0 से, एंड i लेस देन n, लेंथ तक ट्रेवर्स करते रहो, i प्लस प्लस। ओके, i लेस देन n तक ट्रेवर्स करें, i प्लस प्लस कर रहा हूं। ओके, नाउ एवरीवन सी, हम ith इंडेक्स पे हैं, हमें चेक क्या करना है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना पड़ेगा, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे, अगर ये स्मॉल कैरेक्टर है। अब एवरीवन जस्ट टेल मी, स्मॉल कैरेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होंगी? क्या मैं कह सकता हूं जो भी स्मॉल कैरेक्टर होगा, नो मैटर व्हाट, कि समझ लो x, a, b, y, एनी कैरेक्टर, q, क्या मैं कह सकता हूं उसका वट एवर आस्काई वैल्यू इज गोइंग टू बी, आस्काई वैल्यू से मतलब नहीं है, जो भी उसकी वैल्यू होगी, कहने से मतलब ये सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो कैरेक्टर को, कि सी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एंड अगर वो स्मॉल लेटर है, एंड सी विल बी लेस देन इक्वल टू जेड। ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यस या नो? अगर वो स्मॉल लेटर है, लाइक समझ लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक बी के लिए ले लेते हैं। बी की वैल्यू क्या है? देखो ये ऑपरेटर इंटीजर्स पे काम करता है ना, तो देखो सी समझ लो बी है, बी की वैल्यू होती है 98, तो 98 देखो ग्रेटर देन है इक्वल टू 97, ट्रू, एंड इट इज आल्सो लेस देन दिस z, करेक्ट? दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज अ स्मॉल नंबर। यस, अल्फाबेट से याद रखो ना, नंबर से क्यों याद रखना? अब देखो सिंपल सी चीज है, हमें स्मॉल करना था। देखो स्मॉल को कैसे चेक करेंगे? आई एम गोइंग टू राइट इफ s ऑफ i, जो करंट कैरेक्टर है, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, ओके, एंड s ऑफ i इज लेस देन इक्वल टू z, कैन आई फॉर श्योर से कि
this means s of I is in lower case. yes or no? लोअर केस अल्फाबेट होगा. अब लोअर केस अल्फाबेट को हाउ कैन आई मेक इट अपर केस? आई टोल्ड यू ना कैसे होता है कि अगर कोई लोअर केस अल्फाबेट है उसे अपर केस में कैसे करते हैं. मैंने पहले ये बताया था, कैपिटल आर माइनस, लाइक ए से एग्जांपल ले लेते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल आर माइनस स्मॉल ए. करेक्ट. तो मैंने कैसे बोलता, स्मॉल आर को क्या मैं ये लिख सकता हूं, अगर कैपिटल आर बनाना है, स्मॉल आर है मेरे पास, ये चीज कैपिटल आर मिल जाता है, एक इस साइड ले जाओगे प्लस ए, और अगर मतलब कोई भी हमारे पास स्मॉल केस अल्फाबेट है उसमें माइनस ए करूंगा और प्लस कैपिटल ए करूंगा, आई विल गेट द कैपिटल. ऑल ऑफ यू रिमेंबर ना, ये मैंने कैसे प्रूव किया था, आर माइनस ए, रिलेटिव डिस्टेंस तो सेम ही रहता है ना, तो सिंपल है. तो देखो एस ऑफ आई को पता है क्या कर दो, एस ऑफ आई को कर दो करंट एस ऑफ आई, दैट इज अ स्मॉल केस लोअर केस अल्फाबेट माइनस ए प्लस कैपिटल ए. किसको किसको समझ आया ये चीज? यही जैसे ये स्मॉल आर हुआ, स्मॉल आर माइनस स्मॉल ए, जो भी रिलेटिव डिस्टेंस आया प्लस कैपिटल ए, कैपिटल आर हो गया. अब नाउ एल्सिफ, एल्सिफ मैंने क्या बोला था, अगर कैपिटल हुआ, ऑलरेडी वो कैपिटल है, यू हैव टू मेक इट स्मॉल. कैपिटल के लिए क्या, एस ऑफ आई अगर देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है कैपिटल ए एंड एस ऑफ आई देखो स्मॉलर देन इक्वल टू है कैपिटल बी. करेक्ट. तो कैपिटल बी बोल रहा हूं, कैपिटल जेड. कैन आई फॉर श्योर से दिस मीन्स एस ऑफ आई इज इन अपर केस. करेक्ट. अब अपर केस है, अपर केस से कैसे चेंज करना है एवरीवन, इतना तो सिंपल है. हमें स्मॉल केस में बनाना है, स्मॉल केस में तो स्मॉल ए इधर ले जाओ, तो आर माइनस कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए, स्मॉल आर बन जाता है. करेक्ट. सो कैन आई से जो न्यू एस ऑफ आई होगा, एवरीवन सी, कैपिटल एस ऑफ आई वाले को माइनस उसमें पता है क्या करो, कैपिटल ए और प्लस कर दो स्मॉल ए. किसको समझ आया? जस्ट ऑपोजिट, इसमें स्मॉल ए माइनस हो रहा था कैपिटल ए प्लस, इसमें कैपिटल ए माइनस हो रहा है स्मॉल ए प्लस. किसको किसको समझ आ गया? दैट्स इट. इसके बाद देखो अगर हम प्रिंट करेंगे, देखो क्या आंसर प्रिंट हो रहा है. क्या हमारे इसमें सारे कैरेक्टर ऑपोजिट हो चुके हैं? देखो आर स्मॉल आर कैपिटल आर हो गया है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया है. एवरीवन गॉट इट? एंड रेस्ट ऑफ द नंबर रिमेन अनचेंज्ड. कन्वर्जन एक और बार बता दीजिए सर. हर्ष यार अभी तुम पहली बार क्लास में आए हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं समझ आएगा एकदम. मैंने रिलेटिव डिस्टेंस ये सब पढ़ा रखा है, इसीलिए मैंने बोला कि फर्स्ट 7 क्लासेस अच्छे से कर लेना. अभी के लिए थोड़ा बता देता हूँ रिलेटिव डिस्टेंस क्या है. लाइक हाँ 8 क्लासेस हो चुके हैं. लाइक देखो ये स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, स्मॉल डी है, ऐसे करके ये स्मॉल जेड तक है. ओके. ऐसे ही कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी है, कैपिटल डी है, डॉट 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 कैपिटल जेड है. करेक्ट. ये बताओ डी ए से कितना दूर होता है? अगर मैं डी माइनस ए करूंगा क्या वैल्यू आएगी? इनके आस्काई वैल्यूज होते हैं, ए का 65 होता है, 66 होता है, 67 होता है, 68 होता है. कैन आई से इट विल बी नथिंग बट 68 माइनस 65. सॉरी यार उल्टा लिख दिया. ये इसका होता है स्मॉल का 97, 98, 99, 100 और यहाँ पे होता है 65, 66, 66, 67, 68. ओके. सो देखो स्मॉल डी माइनस स्मॉल ए करा तो क्या होगा, 100 माइनस 97. ओके. मतलब ऑब्वियसली ये सारे कंटिन्यूसली होते हैं ना, कंटिन्यूअस होते हैं. तो डी तो हमेशा 3 स्टेप बाद में आता है ना ए के. तो क्या कह सकता हूं मैं, कैपिटल डी माइनस कैपिटल ए भी तो यही होगा, 68 माइनस 65, ये भी तो 3 होगा, क्योंकि रिलेटिव डिस्टेंस तो इनके बीच में सेम ही होता है. लाइक स्मॉल डी और स्मॉल ए के बीच में व्हाटएवर डिस्टेंस विल बी 3, इट विल बी इक्वल टू सेम डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल डी एंड कैपिटल ए. यस और नो? या इनके बीच में और कैरेक्टर आ जाते हैं, कैपिटल हो जाता है तो? ऑब्वियसली नॉट ना, ऑब्वियसली नॉट, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आता. तो देखो अब ये बराबर होते हैं. कैन आई राइट इट लाइक दिस?
कि these both of them are equal, करेक्ट। अब ये इक्वल है तो देखो एक्चुअल में अगर स्मॉल डी के लिए फॉर्मूला चाहिए ना, इट इज नथिंग बट कैपिटल डी माइनस कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए। ये तो पता होगा ना, इस साइड ले जाओ तो इसी से फॉर्मूला आ जाता है कि अगर कोई स्मॉल कैरेक्टर है, इफ यू वांट ना कि एक कैपिटल कैरेक्टर तुम्हें गिवन है तो उसे स्मॉल कैरेक्टर में यू कैन कन्वर्ट इट सिंपल बाय सब्ट्रैक्टिंग माइनस ए एंड प्लस स्मॉल ए, तो स्मॉल वो बन जाएगा। बिकॉज ये रिलेटिव डिस्टेंस तुम्हें देगा 3, करेक्ट, ये रिलेटिव डिस्टेंस देगा तुम्हें 3, 3 प्लस ए मतलब 97 प्लस 3 तुम्हें दे देगा 100। 100 पे क्या आता है डी, यस नो, 100 पे आएगा डी, मिल गया ये। दैट्स इट, दैट्स हाउ वी चेंज। ऐसे ही करके अगर तुम्हारे पास स्मॉल दिया है तो ऑपोजिट साइड ले जाओ, ये वाला ए इस साइड से ले जाओ, दैट्स इट, यही तो है। देखो यही कर रखा है, लोअर केस अल्फाबेट था तो ऐसा ही कैपिटल कैसे कर रहे थे, लोअर केस माइनस स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए। अगर वो ऑलरेडी अपर केस में था, अपर केस माइनस कैपिटल ए प्लस ए, दैट्स इट। ओके, एवरीवन गॉट दिस? ठीक है। सो इट्स टाइम फॉर होमवर्क। सो होमवर्क दे देता हूं अभी। होमवर्क इज दिस। ओके, होमवर्क इज दिस एवरीवन, ठीक है, ये करना। You are given a string, okay, you are given a string with lowercase alphabet only, lowercase alphabet only, okay, lowercase alphabet ही है and only पता है ABCE है, okay, 3 lowercase alphabet से वो string बनी होगी, like any string it could be there, either A, AB, BA, CB, something like this, ACB, everyone getting it? ABCCB, getting it ना? ABC कैरेक्टर होंगे लोअर केस अल्फाबेट। सो योर टास्क पता है क्या है, यू विल पास इट टू अ फंक्शन, ओके, you will pass it to a function, pass it to a function that will return a string such that for every occurrence of A, it will change to A only, मतलब सेम ही रहा, for every occurrence of B in input string B, it will change to BB, BB 2 बार हो गया, and for every occurrence of C, it will change to CCC. Everyone getting it? Like just tell me the output for this. A B C B C A, इसका आउटपुट मैं बता देता हूं, दिस इज एग्जांपल टेस्ट केस। इसका आउटपुट विल बी A will remain A, B will convert it to BB, C will convert it to CCC, B will convert it to BB, C will convert it to CCC, A will convert it to A. So this is going to be the output. Everyone getting it?
ओके तो ये वाली स्ट्रिंग तुम्हें आउटपुट में चाहिए. ओके दिस इज योर वन होमवर्क. ओके सेकंड होमवर्क, सेकंड वाला क्वेश्चन इज दिस. You are given a array. Okay, you are given an array. You array of integers, and you have to टफ हो जाएगा अभी के लिए. फाइंड द, देखो यू हैव टू फाइंड दिस, you have to find this equation result. सर आप दो, टफ होगा तो डिस्कस करेंगे. हाँ अभी पर अभी पढ़ाया नहीं है ना इसलिए. टू फाइंड दिस इक्वेशन रिजल्ट. इक्वेशन देखो क्या है, जैसे अगर तुम्हारा 5 है ना, 5 नंबर से बताता हूँ. S1 S2 S3 S4 5 साइज का एरे है. S5 समझ लो 5 स्टूडेंट के मार्क्स है. तो पता है तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, तुम्हें ये कैलकुलेट करना है. जैसे फर्स्ट नंबर है S1 मल्टीप्लाइड बाय पता है क्या, रेस्ट ऑफ द नंबर सारे उनका सम. ये फिर देखो अगेन प्लस दिस टाइम S2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, S1 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5. गेटिंग? ऐसे S3 other than S3 all of the rest numbers S1 plus S2 plus S4 plus S5. गेटिंग एवरीवन? और ऐसे ही डॉट 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 S5 के लिए क्या आएगा लास्ट में, S1 plus S2 plus S3 plus S4. एवरीवन गेटिंग इट? सो एरे ऑफ n इंटीजर्स है, n इंटीजर्स के लिए कैलकुलेट करना है. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? दिस इज n. ये समझ गए क्या है? जैसे 5 इंटीजर्स होंगे तो ये होगा. लाइक एक एग्जांपल टेस्ट केस बना दूं. लाइक अगर तुम्हारा एरे ये है, 4 नंबर्स ले लेता हूं 1 2 3 4. ये तुम्हारा एरे है 4 नंबर्स का. तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस 1 into 2 plus 3 plus 4 plus 2 into 1 plus 3 plus 4 plus 3 into 1 plus 2 plus 4 plus 4 into 1 plus 2 plus 3. समझ आया? ये इसका आंसर होगा इक्वेशन का. आई होप एवरीवन गॉट इट. सो इतने ही है, 2 ही क्वेश्चन है होमवर्क के. लॉजिक पता है, बस कोड करूं तब पता चले कि आंसर आता है कि नहीं. हाँ मतलब वही बात है, कोड करना इतना टफ नहीं है. Okay, so that's it for today's class. A into S correct Satyam.